covered about how to check the website performance, like how we can find like how many visitors we had last couple of weeks, plus which were those pages that got visited most, and audience demographics कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैनल से आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें we had a discussion in the last class. So today we are going to check the website health. You remember I have shared with you that हम website का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए दो चीजें करेंगे, एक ट्रैफिक एनालिसिस और दूसरा उसका ऑडिट. जैसे हम खुद, एक सेकेंड ना मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ इसको, ठीक है. So This call is now being recorded. Website audit is basically when you are checking your website health. It means you guys know that how Google functions. Crawling, indexing, ranking, right? हमने पढ़ा था इसको कि देखो बहुत सिंपल चीजें ये सब, बहुत बड़ी नहीं है. Crawling क्या होता है कि suppose like as Khushi is having a website, okay, she just published a new blog. So Google bots, गूगल के जो सिग्नल्स रहेंगे वो खुशी की वेबसाइट पे एंटर होके ये समझेंगे कि अच्छा एक पेज नया आया है, अपलोड हुआ है, तो उसका इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना, दैट इज नोन एज क्रॉलिंग. सेकेंड स्टेप इज नोन एज इंडेक्सिंग. मतलब ये सिग्नल अब जाके पेज के अंदर एंटर होगा और समझेगा कि भाई कंटेंट किस चीज के बारे में है, जिसके लिए हमने ऑन पेज एसईओ किया था. We really want the search engine to understand what our post is about, what our content is about, right? So for that we have placed the keyword multiple times, we have edited the snippet, and we are doing XYZ things so that these search engine signals can understand what the best about your content, what is your topic. So that procedure, second step, is known as indexing. तो क्या होता है जब क्रॉल, मतलब कि उसके डेटाबेस में सेव कर लेना कि हाँ एक नया पेज आया है और उस पेज पे क्या है, उस इंफॉर्मेशन को गूगल सेव करके रखता है. फिर जब भी कोई बंदा गूगल पे जाके ऐसी कोई क्वेरी सर्च करता है या उस कीवर्ड को टाइप करता है, तब अगर आपका कंटेंट उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है तो गूगल आपको रैंक कराएगा. दैट इज द थर्ड स्टेप व्हिच इज नोन एज रैंकिंग. करेक्ट. सो नाउ इट इज वेरी obvious that if your pages are crawled and indexed, then only you can rank, because it's a step by step procedure. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पेजेस में एरर आ जाते हैं कि आपका पेज इंडेक्स ना हुआ हो, क्रॉल ना हुआ हो, तो वही हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट का चेकअप कि क्या हमारे सारे पेजेस क्रॉल एंड इंडेक्स हैं या नहीं. जब आप एज एन एसईओ मार्केटर काम कर रहे हो तो आपका यही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट यू हैव टू commit the client that I can crawl and make your pages indexed by Google. ठीक है, ranking eventually it's a gradual procedure, but we will commit that your pages will be crawled and indexed by Google. That's a part in the work of an SEO marketer कि हम ऑन पेज SEO करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें ताकि हमारे पेजेस गूगल में सेव हो जाए. ठीक है, तो ये चीज अपन आज देखेंगे कि भाई हम जो वेबसाइट है हमारी, अभी तो मैं अपनी वेबसाइट का आपको ये सारी चीजें करके बताऊंगी कि हाउ यू कैन चेक वेदर और नॉट योर वेबसाइट pages are indexed by Google, crawled by Google. And second thing is, you know that mobile user experience is very important, right? Though it is not your responsibility, but as an SEO marketer you can check it कि भाई हमारा mobile user experience कैसा जा रहा है, वो चीज देख लेने का कि लोगों के लिए इजी है या नहीं मोबाइल के साथ इंटरैक्ट करना, नेविगेट करना बिटवीन द डिफरेंट पेजेस. सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन वी आर auditing the website performance or auditing a website, that first of all their mobile user friendliness should be good, their pages should be crawled and indexed. The website loading time, you do remember I mentioned you that it should be within 3 seconds. Ideally your website pages should load within 3 seconds. If it is taking 3 to 6 seconds, that is also bearable, but if it is taking longer than 6 seconds, then it will be complicated for Google to rank your website, because Google don't want their users to wait. तो इसलिए ऐसी वेबसाइट्स के पेजेस ही रैंक होंगे जिनका लोडिंग टाइम फास्ट है. तो ये सारा मैट्रिक्स को हमको चेक करना पड़ेगा. प्लस हम ये भी देखना चाहेंगे कि भाई हमारा क्लिक थ्रू रेट कैसा है, CTR रेट, कि कितने लोग आपका गूगल पे कितने बार आपका पेज रैंक हुआ, उनमें से कितने बार लोगों ने क्लिक किया.
that is the impression resulted into the click is known as the CTR. याद हो जब आप गूगल पे कुछ सर्च करो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखती है, बट आप सब पे तो क्लिक नहीं करते, तो सबको इंप्रेशन तो मिला, बट कुछ में जिसमें आपने क्लिक किया, तो कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, उसका रेशियो CTR होता है, जिसको हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं. ओके, सो वी विल ऑल्सो चेक द CTR रेट, वी विल ऑल्सो चेक द बाउंस रेट. बाउंस रेट मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट के अंदर विजिटर आया और बिना कोई एक्शन लिए वापस चले गया, उसको बोलते हैं बाउंस रेट. ओके, सो ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो स्लाइड्स में. ठीक है, मैं एक बार शो भी कर दे रही हूँ. चेकिंग लोडिंग टाइम यहाँ पे लिखा है कि कितने सेकेंड्स में होनी चाहिए, फिर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग है या नहीं. ठीक है, ये होता है बाउंस रेट. बाउंस रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ विजिटर दैट लीव योर वेबसाइट पेज विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, सच एज क्लिकिंग ऑन डिफरेंट लिंक और checking, going to another page or filling out a form or making any purchase. That is known as the bounce rate. मान के चलो एक पेज है, उसके अंदर हम गए, ठीक है, आप कंटेंट पढ़ रहे थे, बट आपने शायद पढ़ा भी, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया. उसके अंदर की जो भी कॉल टू एक्शन बटन्स थे, लिंक्स थी, उनमें आपने क्लिक भी नहीं किया. नीदर यू engage with their different pages, so you just entered that particular content and bounced back. That's why it is called as bounce rate, कि कितने लोग जाके वापस आ रहे हैं. तो ये हो रहा है बाउंस रेट. ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिटेंशन रेट, कि भाई कितने लोग वेबसाइट पे आए और इंगेज किए हमारी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से. मान के चलो कोई मेरे होम पेज पे आया, तो होम पेज के बाद भाई वो दूसरे पेज पे गया, तो कौन से पेज पे गया, ये यूजर फ्लो या रिटेंशन रेट होता है. फिर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स. इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. ब्रोकन लिंक ऐसी लिंक जो करेंगे, मतलब ब्रोकन लिंक वो लिंक होती है जो कि अब आपकी वेबसाइट पे वर्क नहीं कर रही है. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम टाइम व्हेन यू look for a website and you see 404 page, 404 error, this page does not exist anymore, and there are more type of these kind of errors we have in the website that we will be talking about today. ठीक है, तो ये पूरा जैसे एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन, शुगर लेवल, यूरिन टेस्ट, और ये सारे जो टेस्ट होते हैं, बस यही समझो कि ये हमारा पूरा हेल्थ वेबसाइट का हेल्थ चेकअप है, जहाँ पे हम मल्टीपल मैट्रिक्स जैसे कि उसकी साइट स्पीड, उसका यूजर एक्सपीरियंस, उसके पेजेस इंडेक्स हैं, क्रॉल हैं या नहीं, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है कोई, ये सारा चीजें चेक कर रहे हैं, ताकि हम वो सारे एरर्स को फिक्स कर पाए, वैलिडेट कर पाए और उसको रैंक कर पाए. आपका काम सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार करना है. बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होगी जो आप नहीं कर सकते, जैसे यूजर एक्सपीरियंस खराब है, उसमें यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू शेयर दिस रिपोर्ट टू द डेवलपर. If you're working for if you got to know okay these are the broken links, then you should just know what is the reason behind कि ये broken link क्यों है, ऐसा क्या. तो मैं बताऊंगी आपको कुछ टाइप्स ऑफ एरर जो होते हैं जिनके कारण ये चीज होती है. यू जस्ट हैव टू शेयर दिस डेटा टू द डेवलपर, दे विल टेक केयर ऑफ इट. यू जस्ट हैव टू डू अ चेकअप. जैसे इट्स लाइक यू आर इन अ लैबोरेटरी. जैसे हेल्थ चेकअप होता है, मान के चलो आप ब्लड टेस्ट देते हो, तो लेबोरेटरी वाले सिर्फ चेक करते हैं कि भाई क्या हीमोग्लोबिन कितना है आपका, ये शुगर लेवल कितना है, बाकी डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है और सारी चीजें करता है. बस हम लेबोरेटरी में बैठे हैं, ये समझो. ठीक है, ये हमको सिर्फ देखना है कि वेबसाइट में सब चीजें सही चल रही है या नहीं, ऐसा कोई पेजेस तो नहीं है जिसको हम रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है. तो ये इसके लिए हम टूल जो है वो यूज करेंगे, वो है गूगल सर्च कंसोल. ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का आज यूज होगा, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. If you are working for a prospect and you don't have the access of their Google Search Console, then you can also use SEMrush. SEMrush में भी ये अगर आप वेबसाइट डालो नाम, तो आपको पूरा साइट ऑडिट उसका दे देता है कि भाई उनके ब्रोकन लिंक्स क्या हैं, कौन से पेजेस, उनका मोबाइल यूजेबिलिटी कैसी है, उनका पेजेस का कैसा है, दैट यू कैन ऑल्सो चेक. यस विभूति. सो ये SEMrush से था रिलेटेड. मैंने कभी ना टूल्स बाय के थ्रू आई
purchased जो उनका पैकेज था एडवांस था, it was quite मतलब it was very cheap. 500 rupees में I got almost everything. Canva भी आ गया and SEM Rush भी था उसमें. तो उसी के through I can then do the audit, right? Yeah. Meanwhile, I will share with you guys my premium version credential. तो आप लोग दूसरे जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हो. बाकी टूल्स बाय बहुत सही है, मैं खुद ही टूल्स बाय से यूज करती हूँ क्योंकि बहुत चीप रेट में मिल जाता है. उसमें अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दो अकाउंट रहते हैं. कभी कभी अकाउंट फुल हो जाता है तो दूसरा अकाउंट भी चेक कर लेना. मैं आज बता दूंगी वो चीज, ठीक है, टाइम मिला तो. ओके, सो इस तरीके से आज अपन सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे जो एक ऑफिशियल वे है साइट ऑडिट का, क्योंकि जैसे हम गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से लिंक करते हैं वैसे ही वेबसाइट बनती है. उसके लिए बहुत मैंडेटरी होता है कि वो गूगल सर्च कंसोल पे अपना लिंक करे ताकि वो वेबसाइट, जैसे अभी आप लोग सारे लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हो, in case you are purchasing domain or hosting, once you're doing that and you're making a website live, the second most important thing you have to do is like linking your website with your Google search console so that Google can start ranking your pages. Though without that also you can rank, but Google के पास आपका डेटा और इम्पोर्टेंटली सेव्ड होता है जब आप गूगल सर्च कंसोल में लिंक होते हो. तो इट्स लाइक रजिस्टरिंग योर वेबसाइट टू गूगल, काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, कैसे लिंक करना है, द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम वी डिड ऑन द गूगल एनालिटिक्स. सो you'll get a specific, when you create a property, when you sign up, then you will get a specific coupon code, sorry, specific user ID that you have to link inside your website. Now you would like to check this tutorial, that's why recorded modules are with you, where you can, I have unlinked my website and refilmed that particular, recorded that thing, like how you can do that. I couldn't do this right now क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है डेटा को वापस शो होने में. सो इसलिए मैंने अभी वो वाला कैसे लिंक करना है वो पार्ट में स्किप कर रही हूँ, बट वो आपको रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स में पूरा मिल जाएगा. ठीक है, बाकी कैसे वेबसाइट ऑडिट करना है SEM रश के थ्रू वो भी वहां पे दिया है, बट मैं यहाँ पे भी उस चीज को बता दूंगी. ठीक है, तो आज अपन गूगल सर्च कंसोल पे जाते हैं और पहले तो हेल्थ चेकअप भी करेंगे और साथ साथ में थोड़ा बहुत हमको एनालिटिक्स भी मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट के. सो बेसिकली हमको गूगल एनालिटिक्स में पूरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था कि हमारी वेबसाइट में ओवरऑल ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है. बट वहां पे भी हमने देख पाए थे कि सोशल मीडिया नहीं, लेकिन गूगल से भी डायरेक्टली आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है. बट वो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गूगल का है, तो यहाँ पे वो फोकस करता है कि भाई आपको गूगल से कितना ट्रैफिक आया है लास्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, प्लस आपको गूगल पे लोग क्या टाइप कर रहे हैं जिसके थ्रू आप सर्च हो पा रहे हो. तो ये सबसे पहले ये ट्रैफिक अपन देख लेते हैं, फिर अपन वेबसाइट ऑडिट पे जाएंगे. ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो रेज योर हैंड, आई विल रिपीट इट. ठीक है, सिंपल चीज है बट छोटी छोटी चीज है जिसका ध्यान रखना होगा. ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू गूगल सर्च कंसोल फर्स्ट. तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, जब आप गूगल सर्च कंसोल अपना साइन अप कर लोगे तो और वेबसाइट से लिंक होगा, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दिख रहा है www.gautamprachi.com. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हम देखना चाह रहे हैं भाई हमारा परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये है हमारी टोटल वेबसाइट का अभी परफॉर्मेंस. इसमें ये देखो यहाँ पे लास्ट अपडेटेड 5 आवर्स अगो, पहले ही इसका पूरा डेटा अपडेट हुआ है बोल रहा है. ठीक है, सो अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमको लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है इसमें, चाहो तो 28 डेज का भी, बट गूगल में आपको पता है कि इट टेक्स प्रॉपर टाइम. एटलीस्ट यू शुड सिलेक्ट अ डेट रेंज ऑफ 3 months व्हेन यू आर आल्सो वर्किंग फॉर क्लाइंट. यू शुड टेक एटलीस्ट 3 months टू चेक द गूगल एनालिटिक गूगल डेटा, क्योंकि 3 महीने बाद ही आपकी वेबसाइट बेसिकली गूगल पर रैंक होना चालू करती है. 3 to 6 months तो लगते ही लगते हैं. सो हम किस फ्रीक्वेंसी में हमको चेक करना चाहिए, मंथली यू कैन चेक, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि गूगल का ट्रैफिक, गूगल से कितना ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 months का बफर देना चाहिए. नाउ आई हैव रिसेंटली बिल्ट माई वेबसाइट, मतलब मेरा पहले विक्स पे था, उसको पॉज करके फिर से हमने इस पे बनाया. तो अभी थोड़ा सा डेटा मिक्स्ड है यहाँ पे, और आई वुड से
क्योंकि ये नई वेबसाइट है तो उतना नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक, बट स्टिल वी कैन गेट इनटू दिस. सो इन दिस लास्ट 3 मंथ हुए भी नहीं है इस वेबसाइट को अभी, तो लास्ट 28 डेज का भी हम चाहे तो देख सकते हैं. ठीक है, इस लास्ट 1 महीने में हमें या प्लीज अनम्यूट. Ma'am, how old is your website? द वेबसाइट लाइक रिसेंटली 2 मंथ्स पहले ही हमने इस चीज को अपडेट किया, मतलब वर्डप्रेस पे लाके पूरी रीबिल्ड हुई है, स्क्रैच से बनी है वेबसाइट. तो मतलब जो आपने जो वेबसाइट चेंज किया है वर्डप्रेस से विक्स टू वर्डप्रेस में आए हैं, तो वो पुराना जो भी आपका मेहनत किया वो सब बेकार गया? नहीं, वो बेकार नहीं है, उससे भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. लाइक डोमेन का बताता है वो बेसिकली आपको पूरा ट्रैफिक. ठीक है, तो because you have got like the previous website, you had created lot of traffic and all, but then again you are starting from the zero level. because my domain name is same, so it's not a big problem. अगर आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम भी चेंज कर लेते हो तो फिर नहीं पूरा होता है, बट विक्स से वेबसाइट पे हमने सिर्फ शिफ्ट किया है डोमेन को, मतलब पूरी वेबसाइट. लेट्स नॉट गो टू द टेक्निकलिटी, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि वेबसाइट सेम ही है, पहले विक्स पे थी या वर्डप्रेस पे, क्योंकि डोमेन सेम है तो यहाँ पे हमको ट्रैफिक दिख जाएगा. बट अगर कोई क्लाइंट है जिसने डोमेन भी नया परचेस किया, जैसे कि विभूति.com है, और दूसरा उन्होंने नया वेबसाइट बनाया विभूतिमार्केटर.com से, तो ये पूरा नया होगा फिर, बट ट्रैफिक वेस्ट नहीं जाता है कहीं पे भी. ठीक है, राइट नाउ वी आर चेकिंग द मेट्रिक ऑफ लास्ट 28 डेज वेयर वी कैन सी कि गूगल से हमको 611 क्लिक्स आए हैं. टोटल नंबर ऑफ टाइम्स माय वेबसाइट विजिटेड वाज 3, मतलब विजिटेड मींस वेबसाइट वाज विजिबल ऑन गूगल. अगर आपको याद हो मैंने इस चीज को बताया था कि हम अगर कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, सपोज एआई डिटेक्टर टूल डाला मैंने यहाँ पे, तो इन सबको मिला इंप्रेशन, बट मैंने इस पर्टिकुलर इस पे क्लिक किया तो इसको क्लिक मिला, तो दैट पर्टिकुलर रेशियो, दैट पर्टिकुलर डेटा इट इज शोइंग कि इंप्रेशंस, मतलब कि ऑलमोस्ट 3.87 के टाइम्स द वेबसाइट स्निपेट्स वाज विजिबल, मतलब वेबसाइट रैंक हुई, बट उनमें से क्लिक्स कितने आए? 611. इसका मतलब है हमारा एवरेज सीटीआर कितना हुआ? 15.8%. ये हमको कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि क्लिक थ्रू रेट कितना है. जब आप वेबसाइट का वो बनाओगे, रिपोर्ट बनाते हो, सो हमें ये चीज लिखनी होती है, एवरेज सीटीआर. आइडियली 100% होना चाहिए ऑब्वियसली, कि हम चाहेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग क्लिक करें, बट अभी रियलिटी मेरे सामने ये है कि 15% हमारा टोटल क्लिक रेट है, मतलब एवरेज क्लिक थ्रू रेट है. ठीक है, एवरेज पोजीशन ऑफ अ वेबसाइट इज 48.8. अब ये 8.8 क्या होता है? बेसिकली ये एवरेज पोजीशन हो सकता है, कुछ पेज फर्स्ट पे रैंक हो रहे हो, कुछ पेज 8th पे रैंक हो रहे हो, 8th पेज पे रैंक हो रहे हो, कुछ पेज 6th पे रैंक हो रहे हो, तो ये ओवरऑल एवरेज पोजीशन बता रहे हैं वेबसाइट की कि वो 48th पोजीशन पे रैंक हो रहा है. 48th पोजीशन मतलब फर्स्ट पेज पे 10 पेज ही रहते हैं, करेक्ट. सेकेंड पे 11 से 20 तक होगा, थर्ड पेज पे 31 to 40 हो गया, फोर्थ पेज पे अभी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें पूरे पेजेस को, तो ये फोर्थ पेज पे रैंक हो रही है वेबसाइट 8th पोजीशन में. ठीक है, तो ये है ऑन एन एवरेज पोजीशन. हाँ विभूति, कोई क्वेश्चन है? Okay, so ranking is the last step, which is the third step, जिसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं. तो वेबसाइट इंडेक्स कितने टाइम में हो जाती है गूगल पे? उसमें हमने रैंकिंग पे वापस जाते हैं, तो रैंकिंग का मैंने बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन अथॉरिटी. ठीक है, तो अगर वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी है 35 से लेस, सो इट गोना टेक अराउंड 6 to 9 months. Okay, if the domain authority is above 35 and on an average 35 to 75, it will take barely 3 to 5 months for them, or 2 to 5 months. और वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 75 से अबव है तो उसको 1-2 महीने में भी रैंक हो सकती है वो, करेक्ट. अब इंडेक्स की बात ये होती है कि जिस टाइम पे आपने कंटेंट पब्लिश किया उसके 24-48 आवर्स में ही आपका पेजेस इंडेक्स हो जाता है गूगल पे. ओके, क्योंकि जो आपकी जैसे वेबसाइट है उसमें गूगल क्रॉलर हमेशा भेजते रहता है वेदर यू आर अपडेटिंग और नॉट अपडेटिंग.
योर कंटेंट। जैसे अभी मेरी वेबसाइट है, हो सकता है मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया हो अभी, बट वो क्रॉलर मेरी वेबसाइट में आते रहेंगे हर 4-5 घंटे में। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेजेस इन द वेबसाइट ऑल्सो। जैसे मिंत्रा जैसी वेबसाइट है जहाँ पे हर सेकेंड में या हर मिनट में कुछ ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, तो उनके वेबसाइट पे क्रॉलर्स जो रहते हैं वो बहुत हैवी रहते हैं, मतलब हर बहुत फ्रीक्वेंसी, मतलब फास्ट वेरी ऑफन आएंगे। हमारी वेबसाइट में जिसमें ऐसा पैटर्न नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, तो हम, आपको याद है एक चीज हमने स्कीमा मार्कअप बनाया था, उसमें चेंज फ्रीक्वेंसी था एक चीज, राइट, कि स्कीमा मार्कअप पे हमने चेंज फ्रीक्वेंसी दिया था कि कब कितने इंटरवल में आप चेंज करते हो पेज को, ताकि हम गूगल क्रॉलर को एक आइडियल ड्यूरेशन दे दे कि भाई मैं इस पेज को कितने ऑफ, वो फिर भी अपना काम वो खुद भी करेगा, बट अगर आप उसको एक बता दो कि भाई ये वो पेज है जो मैं बहुत आवरली चेंज कर रही हूँ, तो क्रॉलर आपके वेबसाइट पे उस पेज पे या आपकी वेबसाइट में उन घंटों में आएंगे या उस ड्यूरेशन में आएंगे। बट वो किन के लिए इम्पोर्टेंट है, किन वेबसाइट्स के लिए, जो कि स्टॉक मार्केट वाले वेबसाइट्स हैं या न्यूज वाली वेबसाइट्स है जिनका पेज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं या एड ऑन होते हैं, या जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, बड़े बड़े ई कॉम प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जिनमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ऑफन एड ऑन्स हो रहे हैं, इसलिए उनके इसमें क्रॉलर ज्यादा होगा। बट हमारी वेबसाइट जैसी है, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग हर 4-5 घंटे में क्रॉलर्स आते हैं, बट इंडेक्सिंग तो आपकी तुरंत भी हो सकती है, बट हम फिर भी एक आइडियल टाइम ले तो 24 to 48 आवर्स होते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अपन आगे जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा हाँ, पोजीशन के बारे में बात करिए। अब है क्वेरीज। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी मतलब ऐसा गूगल पे लोग क्या टाइप कर रहे हैं, जहां पे मैं इस लास्ट 20 डेज में उन्होंने ऐसा क्या टाइप किया है। तो भाई लोग 222 पीपल सर्च डायरेक्टली फॉर यूसेवी एकेडमी, 118 पीपल, अराउंड 256 impressions on UCV Academy, मतलब सर्च किया होगा UCV Academy तब आया होगा। फिर प्राची गौतम प्राची UCV Academy, सोशल मीडिया कंटेंट पिलर्स फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग एंड SEO एल्गोरिथम। ये ऐसे कुछ टॉप क्वेरीज हैं जो कि कितने बार वो दिखे हैं, मतलब लोगों ने सर्च किया है और कितने बार वो उस पर क्लिक आए हैं, हम इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब भैया ये डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर ऐसा बोलूं तो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक SEO कीवर्ड्स एट दिस मोमेंट। People are searching me by my website name with the academy name or by my name. Okay. So at the end we go for traffic. Obviously, अगर मैं ऑनेस्टली देखूं तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट में कीवर्ड्स, क्योंकि ब्लॉग्स अभी कुछ 7-8 ब्लॉग्स हैं जो कि हमने फिर से पब्लिश किया है, अभी उनको इतना टाइम नहीं हुआ है, तो अभी उन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे हम रैंक नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, आई कुड सी दैट कि लोग मुझे खुद नाम से सर्च करके they are coming to my website. The takeaway from here is, because I could see people are knowing me and directly searching for my name, so why can't I use my name as a keyword in my those specific catalog pages? Instead of using digital marketing course as a keyword, I should use Prachi Gautam या UCV Academy Digital Marketing Institute, because I could see that my personal branding is better than organic search or organic keywords. तो ये डेटा मेरे लिए अभी तो खैर अभी नए नए पेजेस हैं सारे, तो भाई वो टाइम लगेगा उनको, क्योंकि सारा कीवर्ड चेंज है, सब कुछ चेंज हो गया है, तो इट गोना टेक सम टाइम फॉर मी। बट आई नो दैट कि पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है, तो मैं जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे हम पर्सनल हैशटैग, ब्रांडेड हैशटैग बनाए थे, हैशटैग विभूति शर्मा, हैशटैग शुभश्री रॉय, हैशटैग मोनिका मार्केटर, ऐसे कुछ, राइट? क्यों बनाए थे? ताकि जब लोग हमको कभी इन फ्यूचर हमारे नाम से सर्च करेंगे तो हम उन कीवर्ड्स पे रैंक हो पाए,
हमको लोग जब हमारे नाम से सर्च करें तो हमारी वो पोस्ट उनको दिख पाए। वही रीजन अब मैं यहाँ पे वाइस वर्सा देख रही हूँ कि मैंने ऐसे कोई कीवर्ड टारगेट नहीं किया जो जिसमें प्राची गौतम, बिकॉज ऑनेस्टली आई डेंट फील कि लोग मुझे फाइन करेंगे। अभी तो मैं नहीं हूँ मार्केट में, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो दे स्टार्टेड फाइंडिंग मी विथ माय ब्रांड नेम, सो आई शुड यूज देम एज माय फोकस कीवर्ड। अब क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि वो मुझे डायरेक्टली, तो ऐसे कुछ कैटलॉग पेजेस है जैसे होम पेज है, कोर्स के पेजेस है, इनमें तो मैं अपना फोकस कीवर्ड यूज कर ही सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम अपना ब्रांडेड कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये चीज एज अ टेक अवे ले सकते हैं। बाकी ये भी चीज पता चल गई कि कंटेंट पिलर्स ऑन सोशल मीडिया, ये भी कुछ कीवर्ड्स है जिसमें हम सर्चेबल हो रहे हैं। तो it's basically a data in front of you. What are those keywords through which you are being searchable, and what keywords people are searching to find you? Okay, so it's a great data that will give more clarity to the client कि भाई हमको लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमको फ्यूचर कीवर्ड्स क्या टारगेट करना चाहिए, या एग्जिस्टिंग पेजेस में कुछ कीवर्ड चेंज करना है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये डेटा भी हमको मिल जाता है। ये चीज गूगल एनालिटिक्स पे नहीं मिली थी हमें, ठीक है, ये चीज सिर्फ गूगल सर्च कंसोल पे मिलती कि क्या क्वेरी से लोग आपको सर्च करें। अब अपन साइट ऑडिट पे आते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये क्वेरी के बाद ये डेटा हो गया खत्म। अब इसके बाद हमारा एक यहाँ पे है इंडेक्सिंग का कॉलम दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे एक इंडेक्सिंग का कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है। इस इंडेक्सिंग के कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको आएंगे पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा वेबसाइट का हमको डेटा बता रहा है कि भाई प्राची आपके कितने पेजेस है जो गूगल पे इंडेक्स्ड हुए हैं और कितने पेजेस हैं जो गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि ऐसे मेरे बहुत सारे पेजेस हैं जो गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहे। अब उसका रीजन, और पहली बात तो हम सिर्फ ये नंबर्स नहीं देख सकते, हम ये भी देख सकते कि कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड हुए हैं। अगर हम इस पे व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स्ड पेजेस पे जाएं तो ये पेजेस इंडेक्स्ड हुए हैं, और अगर हम चाहें तो नॉन इंडेक्स्ड पेजेस पे भी जा सकते हैं जो पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। ये पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं, ये डेटा है उसका, ठीक है। These are those pages, ये लिस्ट आगे तक है, ठीक है। ये कुछ पेजेस हैं जो गूगल पे इंडेक्स नहीं हुए हैं। ओह सॉरी, ये इंडेक्स पेजेस का ये क्या, वेट एक सेकेंड, नॉट इंडेक्स्ड, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे नॉट इंडेक्स पेजेस का नीचे डेटा दिखा रहा है, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन एरर्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, और उसका रीजन भी बता रहा है। तो पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मेरी वेबसाइट है जिसमें 256 पेजेस हैं, जो कि वेरी ह्यूज अमाउंट है, जो कि इंडेक्स नहीं हो रहे। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनको मैं नहीं करवाना चाह रही हूँ, जैसे कि मेरे कोर्सेज के पेजेस जहाँ पे मेरे मॉड्यूल्स हैं, वो पेजेस जिसमें मेंबरशिप फॉर्म्स है, जैसे जहाँ पे आप लोगों ने जब आईडी बनाई होगी या यूजर नेम पासवर्ड वाला यूजर आईडी वाले पेजेस हैं, उनको मुझे रैंक नहीं करना है। आई हैव वन couple of pages like my privacy policy pages, refund policy pages that I don't want to rank. I have login pages, I have member pages. These are some pages which I have restricted Google to rank. Why? Because they are confidential information. Second, this is my private content. And third, these are not important pages like privacy policy page or refund policy page. तो हर वेबसाइट के सारे पेज रैंक हो या इंडेक्स हो ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेजेस को हमको सेव करना पड़ेगा रैंक होने से या गूगल पे जाने से। थिंक अबाउट HDFC बैंक, they must be having member pages in lakhs or crores. They will be having the
very confidential data of user ID, password, bank details, amount in their system, in their website, which is very, very confidential that they cannot even think of ranking it on Google or in fact indexed by Google. Because if it goes wrong, then it's gonna be a very high end risk कि भाई पूरा पैसा लोगों का चल जाएगा. तो ऐसे कुछ पेजेस होंगे हमारी वेबसाइट पे जिनको हमको रैंक नहीं करवाना होगा. तो पेजेस होते मेंबर पेजेस, लॉगिन पेजेस, यू नो. तो इन पेजेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कल एक सेशन लेंगे जिसमें हम बात करेंगे robots.txt फाइल की. ठीक है. तो हमारी एक वेबसाइट होती है टेक्निकल एसईओ बेसिकली. ये आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइट मैप और robots.txt जो कल पढ़ेंगे, ये आपका काम नहीं है. पहली बात, एज एन एसईओ मार्केटर, इट कम्स इनटू टेक्निकल एसईओ. If as you are an SEO expert, you should at least know what are they. You know कि साइट मैप क्या होता है, भाई बनता कैसे है, या robots.txt फाइल होती क्या है. ये सारे काम डेवलपर के होते हैं. जैसे नाथुलाल, he is making the website. It's gonna be their work to submit the sitemap or to create a robots.txt file so that Google Search Console cannot, or any Google bot or any search engine bot will restrict these pages to enter और क्रॉल और इंडेक्स और ऐसे और भी फाइल्स होती है. बट ये दो इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जो कि एक सबसे पहले होती है साइट मैप और दूसरी होती है robots.txt. तो हम पहले तो बात करते हैं उन एरर पेजेस की. भाई ऐसे कौन से पेजेस है जो गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और क्यों नहीं हो रहे हैं, उनका रीजन भी दिखेंगे. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम एकदम अकड़ में आ गए कि ठीक है नहीं हो रहे होंगे, बट हमको ये भी तो देखना है कि भाई ऐसा कोई पेज तो नहीं है जिसको मैं रैंक करवाना चाह रही हूँ और फिर भी वो नहीं हो रहा है. तो इसलिए हम इन एरर पेजेस पे जाएंगे. व्हाट आर दीज एरर्स बेसिकली, उनके बारे में बात करते हैं और उनको कैसे वैलिडेट या फिक्स करेंगे डेवलपर्स, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो लेट्स गेट इनटू दिस सेक्शन ऑफ नॉन इंडेक्स्ड पेज. इंडेक्स हो गए, उनके बारे में बात नहीं करना, विच इज वेरी गुड. नॉन इंडेक्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा. तो वापस से अगर हम गए यहाँ पे, तो ये रहा हमारा ये नॉट इंडेक्स्ड पेजेस है. यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करें नीचे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर दिख रहे हैं. अब मैं आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही हूँ एरर्स के बारे में. ये रहा. यस, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है. सबसे पहला है 404 एरर. It is basically a status code that tells a website user that a requested page is not available or server could not find a client requested web page. ये 404 एरर वाला पेज है. 404 एरर का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. 404 का मतलब ये होता है ऐसा पेज जो वेबसाइट ने डिलीट कर दिया, ठीक है, या उसका एड्रेस चेंज हो गया. इसलिए कभी आप ऐसे URL पे जाते हो जो रैंक हो रही है और क्लिक करते हो तो 404 स्टेटस दिखाते हैं. उसका मतलब ये है कि वो पेज या तो डिलीट हो गया या तो उसका एड्रेस चेंज हो गया. ठीक है. अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मोनिका ने ब्लॉग पब्लिश किया था लास्ट ईयर, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन शी डिलीटेड इट. Okay, so what will happen? Suppose that time Monica promoted this blog on social media or shared me the link via WhatsApp. So I still have that link क्योंकि उन्होंने प्रमोशन किया था, या एक YouTube वीडियो जहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो YouTube वीडियो तो आज भी रैंक हो रहा है.
तो ऐसी लिंक्स जो लोगों को अभी भी विजिबल है, ऐसे पेजेस की जिनको आपने डिलीट कर दिया, अब वो लोग आज भी अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा 404, मतलब ये पर्टिकुलर पेज उस वेबसाइट ओनर ने डिलीट कर दिया। और उसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसका एड्रेस चेंज हो गया। तो एड्रेस चेंज होने का मतलब क्या होता है? यू गाइस नो अबाउट स्लग, करेक्ट? स्लग क्या होता है? ऐसा कीवर्ड जो आपकी यूआरएल के साथ आता है। मान के चलो आपका, और स्लग बेसिकली आपका फोकस कीवर्ड होता है, ये भी याद होगा आप लोगों को। बेसिकली अपन ने पढ़ा था एक snippet. Snippet is basically the short information of your ranking page that displays in the search engine result page, right? So it consists of title tag, meta title, meta description और एक slug होता है। सिंपल सी बात है, ये वाली चीज है जो गूगल पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, ये है बेसिकली स्निपेट। इसमें ये होता था टाइटल टैग, सबसे पहला वाला जो टाइटल है ये है टाइटल टैग, ये होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये जो यहाँ पे एआई डिटेक्टर छोटा सा दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा स्लग। अगर हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊंगी तो आपकी यूआरएल के आगे ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा होता है, इसी को बोलते हैं हम स्लग। और आपको याद हो तो हम इसको एसईओ फ्रेंडली बना रहे थे, तो इसमें हमने जो फोकस कीवर्ड हमारे पेज का है, उसी फोकस कीवर्ड को हमने कोशिश किया था कि हमारे टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और स्लग में हम डालेंगे। करेक्ट। अब मान के चलो मोनिका ने ये ब्लॉग पब्लिश किया था, एक ब्लॉग और है जो पब्लिश किया था लास्ट ईयर। अब मोनिका को लगा भाई वो ब्लॉग का इनका जो कीवर्ड था वो था डिजिटल मार्केटिंग इन 2023। अब मोनिका को लगा 2024 आ गया, तो इन्होंने क्या किया, वो कीवर्ड को कर दिया चेंज। ठीक है, जब उन्होंने वो कीवर्ड चेंज किया तो उन्होंने स्निपेट चेंज किया अपना, स्निपेट में उन्होंने स्लग चेंज कर दिया। जब आप अपना स्लग चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका यूआरएल चेंज हो गया पूरा। करेक्ट। तो उस वजह से अब मैं पुराने यूआरएल से टाइप कर रही हूँ, बट उन्होंने अपना यूआरएल चेंज कर दिया, मतलब अपना फोकस कीवर्ड चेंज कर दिया या स्लग चेंज कर दिया, जिस वजह से पूरी यूआरएल बदल गई। इसलिए हम बोलते हैं कि हमको कीवर्ड्स अपने एग्जिस्टिंग पेज, आपने एक बार एसईओ कर दिया किसी वेबसाइट का, तो फिर हमको फ्यूचर में अनटिल एंड अनलेस इट इज लाइक अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर यू, आपको तब तक अपने कीवर्ड चेंज नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने कीवर्ड चेंज करोगे, सपोज आज मैंने अपना पेज डिसाइड कर लिया और उसमें कीवर्ड टारगेट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं अगले महीने जाके उसको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग पे डाल रही हूँ, उसके अगले महीने कुछ और। तो हर वक्त जब मैं अपना कीवर्ड चेंज कर रही हूँ मेरी यूआरएल चेंज हो रही है, तो वो लोग जो मेरी पुरानी यूआरएल से सर्च करेंगे उनको मेरा पेज मिलेगा ही नहीं। अगर 404 एरर मिल रहा है तो क्या होगा, आपका यूजर एक्सपीरियंस हो गया खत्म। करेक्ट, कि मेरे को तो पेज मिला ही नहीं, और यूजर को ये भी लगेगा भाई ये पेज ही डिलीट हो गया, वो वेबसाइट सही भी है या नहीं। तो काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी चैलेंज हो जाती है यहाँ पे। तो ये होता है 404 एरर, ऐसा पेज जो वेबसाइट से हो गया है डिलीट, या तो उसका एड्रेस हो गया है चेंज। एड्रेस चेंज कब होता है, जब हम उसका स्लग चेंज करते हैं, और स्लग चेंज करने का वजह ही ये होता है जब आप अपना फोकस कीवर्ड चेंज करते हो। तो हमें कभी किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो और उनके एग्जिस्टिंग पेज के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई फोकस कीवर्ड चेंज कर दो, रैंक नहीं हो रहा है, या उन्होंने हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स टारगेट कर चुके हैं गलती से, अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि ये चीज करनी है, तो हमको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम क्लाइंट को जाके ये बोलें कि आपने जहां जहां भी इसको प्रमोट किया है, यूट्यूब, फेसबुक, आपकी लिंक्डइन बायो, वहां पे इस लिंक को अपडेट करो, या तो कहीं पे एक नोटिफिकेशन डालो या ईमेल मार्केटिंग करो अबाउट दिस पर्टिकुलर यूआरएल, content which where you are promoting a new URL. So this usually is being done whenever someone changes the keyword, but it should be done in only in a very रेयर केस, कि भाई जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उनका कीवर्ड चेंज करना, या वो कीवर्ड गलत हो गया है, या समथिंग हैज हैपन कि वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, या तो फिर उन्होंने अगर कीवर्ड चेंज किया तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हर वो जगह जहां पे उन्होंने प्रमोट किया वहां पे जाके उसको अपडेट करें, जो भी पॉसिबल वेज है उनके लिए। ठीक है, तो ये होता है 404 एरर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट के ऐसे कौन से पेजेस है जो 404 पे आ रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, इस पे टैप करेंगे तो ये सारे पेजेस है जिनमें 404 एरर आ रहे हैं। ये है जैसे कि कोई पेज 2 है, फिर है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, वो हमने हटा दिया है। फिर है सर्विसेज का कंसल्टेंसी, ये पेज भी हट गया है। एक डिजिटल मार्केटिंग करियर्स का एक पेज था, वो डिलीट हो गया है। तो ये सारे पेजेस डिलीटेड पेजेस हैं। और जो मैंने एक कंडीशन बताई ना, जहाँ पे हम अपने पेजेस की यूआरएल चेंज कर रहे हैं, वहां पे एक और तरीका होता है। मान के चलो आपने अपना स्लग चेंज कर दिया और लोगों के पास आज भी आपकी पुरानी यूआरएल है, तो भी एक और तरीका है कि हम अपनी पुरानी यूआरएल से नए वेबसाइट के पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। कि रीडायरेक्शन मतलब कि आपका एक पेज था, उस पुरानी यूआरएल पे भी अगर कोई टाइप कर रहा है और आप चाहते हो कि अगर वो धोखे से टाइप कर लिया या क्लिक करा तो भी हमारा जो अपडेटेड पेज है अब उस पे वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये डेवलपर्स का काम होता है। अगर आप इस 404 वाली शीट में कुछ ऐसे पेज देख पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यार ये पेज तो हमको रैंक करना है, या ये पेज तो कॉन्टेक्ट अस वाला था जिसका हमने फोकस कीवर्ड चेंज कर दिया है, बट लोग तो हो सकता है कॉन्टेक्ट अस से सर्च कर सकते हैं ना मुझे, अब उसका नाम कंसल्टेंसी है, तो हम क्या करेंगे, उस पुराने पेज को नए पेज से रिडायरेक्ट कर देंगे, नए पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो कोई अगर ओल्ड यूआरएल भी ब्राउज कर रहा है तो नई यूआरएल पे आ जाएगा। ये काम डेवलपर का होगा। आपको सिर्फ शीट में कौन से पेजेस है दैट यू फील लाइक फ्रॉम द लिस्ट कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको हो सकता है लोग इसको यूज करें हमको फाइंड करने के लिए, तो उन पेजेस पे जाके हम उस डेटा में से उस लिंक्स को निकाल के एक गूगल शीट बनाएंगे और विच यूआरएल विथ 404 एरर एंड न्यू रिडायरेक्टेड यूआरएल, मतलब ऐसी यूआरएल जिसमें हमको रिडायरेक्शन करना है, उसका एक गूगल शीट पे जाके भेज देंगे हम डेवलपर के, भाई ये कॉन्टेक्ट अस वाला एक पेज है, इस पर्टिकुलर यूआरएल को आप शिफ्ट करो कंसल्टेंसी गौतम प्राची /कंसल्टेंसी वाले यूआरएल पे। तो ये डेवलपर का काम है। कूल, समझ में आ गया 404 एरर क्या है? ठीक है, अब ये 404 एरर के बाद दूसरा एक और एरर है, यहाँ पे देखो लिस्ट भेजा हुआ है मैंने और आपको यहाँ पे दिखेगा भी अभी शीट पे। ये कुछ 52 पेजेस है वेबसाइट में जो कि नो इंडेक्स टैग से है। नो इंडेक्स मतलब कि हमने गूगल को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि भाई ये पेज को आपको छूना भी नहीं है, ये पेजेस मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस है, तो आई डोंट वांट यू टू इवन टच और इंडेक्स और क्रॉल दीज पेजेस। तो ये पेजेस को हम क्या करेंगे, ये robots.txt फाइल जो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, जिसमें हम गूगल को इंस्ट्रक्शन देंगे इस फाइल के थ्रू, ये पेजेस के अंदर जाना आपको अलाउड नहीं है, किसी भी सर्च इंजन को, वो याहू हो, गूगल हो, बिंग हो या मोजिला फायरफॉक्स हो। तो उसके लिए अपन कल पढ़ेंगे वो कैसे बनती है वो फाइल। एनीवे ये हमारा काम नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टीच यू दैट। फिर वैसे ही और भी एरर्स है, जैसे कि मैंने ये एरर ग्रुप पे डाला है या नहीं डाला है ना? यस। हाँ ठीक है। सो तीसरा है 403 एरर, यहाँ पे देखो शीट में लिखेगा आपको। हाँ, यहाँ पे एक है पेज विथ रिडायरेक्शन प्रॉब्लम। कुछ ऐसे पेजेस है जिसमें रिडायरेक्शन किया है बट वो नहीं हो रहा है, ये इसकी भी आप लिंक दे सकते हो रिडायरेक्ट करने वाला। कब कर दियो? इस पे आप जाओगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सिट बिहाइंड मामा, सिट बिहाइंड मामा। ओके, इसका मतलब क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। पेज विथ रिडायरेक्शन का एक ये भी रीजन हो सकता है, मान के चलो अभी मेरे पास होम पेज है, ठीक है, उस होम पेज में मेरे पास कहीं कॉल टू एक्शन बटन था कंसल्टेंसी का, अब मैंने वो चेंज कर दिया है, ठीक है,
वो तो मैंने यूआरएल को करा दिया, बट ये वाले पेज में तो मेरी ओल्ड यूआरएल पेस्ट है ना, तो इस पेज के जो बटन है उनकी भी यूआरएल अपडेट करनी होगी। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? कि भाई मान के चलो मोनिका ने अपने होम पेज में डाली रीड ब्लॉग्स करके, ठीक है, अब ब्लॉग का लिंक है यहाँ पे उस रीड ब्लॉग की पूरी कैटेगरी का। अब मोनिका ने उस कैटेगरी का नाम चेंज कर दिया या कीवर्ड चेंज कर दिया, तो वो यूआरएल भी बदल गया। तो उन्होंने एक काम तो किया कि जो भी रिडायरेक्शन वाले पुराने कीवर्ड्स थे उनको रिडायरेक्ट तो करवा दिया, बट भाई ऐसे कई आपके वेबसाइट के अंदर बटन्स होंगी जहाँ या कॉल टू एक्शन लिंक आपने दे रखा होगा अपने इस वाले पेज की, तो वो भी आपको अपडेट करना होगा। तो मान के चलो आपका एक कॉन्टेक्टस पेज है, उस कॉन्टेक्टस पेज का आपने अब कर दिया कंसल्टेंसी। अब वो आपका होम पेज जो है वहां पे अभी भी कॉन्टेक्टस वाली यूआरएल लिंक है, तो उसको रीडायरेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। कि अब वो ऐसे पेजेस जहाँ पे ओल्ड यूआरएल पेस्ट है, ऐसे कॉल टू एक्शन बटन्स पे या एनकॉल टेक्स्ट पे, तो उसको हमको चेंज करना होगा, ठीक है। फिर है 403 एरर। 403 एरर क्या है देखते हैं हम। ठीक है, देन दिस 403 इसको बोलते हैं फॉरबिडन response status code indicates that server understands the request but refuses to authorize it. The status is similar to 401 password protected pages. The access is tied to application logic such as insufficient right to resource. ठीक है, तो 403 error बेसिकली वही होता है कि आपके ऐसे पेजेस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉरबिडन पेजेस, जिसको हम गूगल को अलाउ नहीं कर रहे हैं, सर्च इंजन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कहीं ना कहीं पे नो इंडेक्स टैग या इसको हम 401 भी बोलते हैं और 403 भी बोलते हैं। ये एरर्स वही होते हैं जिसमें हम गूगल को स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि भाई ये पेज आपको इंडेक्स नहीं करना है, ठीक है, ये पेज आप रैंक नहीं कर सकते। तो इस पे जाके देख लो भाई सारे सही पेजेस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई पेज है ऐसा जिसको हमको कराना है रैंक बट वो 403 पे चले गया है, वो शीट आप बना लो। फिर alternate page with proper canonical tag. अब canonical tag error is an issue caused by duplicate content are really common SEO problem for website. Having identical or very similar content on more than one URL can result in indexing problem. Okay, इसको मैं समझाती हूँ। कभी कभी होता है कि हमारे डुप्लीकेट पेजेस बन जाते हैं वेबसाइट में। आप मान के चलो जब वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे तो कॉन्टेक्टस के 2 बन गए। एनीवे आपने पहले वाले को एडिट किया, दूसरे वाले को रहने दिया, बट कुछ ना कुछ कॉमन रह गया उसमें चीज। इट कुड ऑल्सो बी द रीजन इफ 2 स्निपेट्स आर सेम। सपोज अगेन देखते हैं, मोनिका ने 2 ब्लॉग लिखे। सॉरी मोनिका, सारी गलतियां आप कर रहे हो। मान के चलो मोनिका ने 2 ब्लॉग लिखी, ठीक है, ये दोनों ब्लॉग हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स पे, और इन्होंने दोनों ही ब्लॉग में सेम कीवर्ड टारगेट कर दिया। पहली बात तो हमने एक चीज पहले ही समझ लिया है कि हमको हमारी वेबसाइट में ऐसे कोई भी 2 कीवर्ड टारगेट किया है। क्यों भाई, हम अपने आप से क्यों भिड़े ना, मतलब आप अपने ही 2 पेज में को कंपटीशन में क्यों लाओगे, आपको तो दूसरों से कम्पीट करना है। तो हम एक लॉजिकल बात तो ये कि हमको 2 पेजेस हो ही नहीं सकते जिसमें सेम कीवर्ड होगा। इसका मतलब सेम यूआरएल वाले 2 पेज हो ही नहीं सकते आपके, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि आपने सिमिलर कीवर्ड टारगेट कर दिया या स्निपेट सिमिलर हो गए या डुप्लीकेट हो गया कंटेंट। तो प्लेजरिज्म इशू सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वेबसाइट का नहीं होता, हमारी भी वेबसाइट का होता है कि ऐसे कोई 2 पेजेस तो नहीं जिसमें सिमिलर कंटेंट हो गया, यू नो, कि बाय मिस्टेक हो गया और यू नो लाइक डुप्लीकेसी हो गई व्हाइल यू कॉपीड पेस्टेड समथिंग, और स्निपेट कॉमन हो गया, ठीक है। इस वजह से हम कभी भी सेम कीवर्ड टारगेट नहीं करते। स्निपेट सेम नहीं रहना चाहिए, टाइटल टैग सेम नहीं रहना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। हमारा काम सिर्फ वो लेबोरेटरी वाला है जहां पे हम ये लिस्ट निकाल के डेवलपर्स को दे देंगे। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई टोल्ड यू लाइक व्हाट इज 403, व्हाट इज 404। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। 404 एरर क्या होता है? ऐसा पेज जो वेबसाइट में वो ऐसा यूआरएल जो अब वेबसाइट में नहीं रहा, तो ऐसा पेज जो डिलीट हो गया है या तो उसका यूआरएल चेंज हो गया।
इसको फिक्स करने का सॉल्यूशन ये होगा, डॉक्टर क्या करेगा, मतलब डेवलपर यहाँ पे चेक करेगा कि भाई यूआरएल जो है वो डिलीट हुई है, तो हम नए वाले यूआरएल से उसको रिडायरेक्ट करवा दें, या तो उस पर्टिकुलर पेज को हम पूरा वेबसाइट से और गूगल से भी हटा दें। तो वो एक साइट मैप होता है जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो अगर आज आप लोगों का रहा उतना, तो अपन उस पे भी बात करेंगे कि कैसे हम अपने गूगल से भी उस डेटा को हटा देंगे। मान के चलो मैंने कंटेंट पब्लिश कर दिया गूगल पे, मैंने अपनी वेबसाइट से तो डिलीट कर दिया, बट आपको पता है कि क्रॉल तो हो गया था पहले ही वो, तो अभी भी गूगल के पास वो डेटाबेस है, दो अब उसके पास भी वो इंफॉर्मेशन बस एक काइंड ऑफ एक कैशे होता है ना, कि आपने डिलीट कर दिया बट एक कैशे में है, तो वैसे ही उसके पास भी कैशे पे पड़ा होगा, तो उसको भी हमको वहां से हटाना पड़ेगा, गूगल की डायरेक्टरी से भी, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम डेवलपर्स के होंगे। तो डेवलपर ये चीज करेंगे कि सबसे पहले तो यूआरएल को रिडायरेक्ट करवा देंगे, या तो डायरेक्टरी से हटा देंगे कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा होता है 403 एरर, जिसको हम बोलते हैं ऐसा पेज जिसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस है, लॉगिन पेजेस हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाले पेजेस हैं, जिनको हम गूगल पे डिसअलाउ कर रहे हैं रैंक करना। इसको हम कल सीखेंगे कि robots.txt एक फाइल होती है जिसके थ्रू हम गूगल को सबमिट करते हैं ऐसे पेजेस जो वो अलाउड नहीं है क्रॉल, इंडेक्स या रैंक करना। ठीक है, क्योंकि क्रॉल इंडेक्सिंग होगी नहीं तो रैंकिंग ही कहाँ से हो पाएगी, तो हम क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बंद कर देंगे उन पेजेस की। फिर होता है कैनोनिकल टैग, जो कि डुप्लीकेसी वाले कंटेंट की वजह से होता है, ऐसे दो पेज जिसमें स्निपेट सिमिलर हो गया, या ऐसे दो पेज जिनमें आपका कंटेंट सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसको फिक्स करने का ये है कि डुप्लीकेट में से एक पेज को हटा दो, टेक क्लाइंट डेवलपर हेल्प, दे माइट आल्सो बी एबल टू सेट अप योर रिडायरेक्ट यूजिंग HTA एक्सेस। इसको हम रीडायरेक्ट्स NGINX कुछ बोलते हैं, जो मुझे भी कुछ नहीं पता है ये क्या होता है, बट इसको इस तरीके से इन लोग एडेड करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको एक एज ए इंफॉर्मेशन डाल दिया है। ठीक है, ओके, इसमें ये होता है अपना एरर्स। यस मोनिका, आपको कोई डाउट है? I have a doubt in canonical error tag. हाँ हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपना ही लेती हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने लिंक्डइन में अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल के रूप में डाल दिया है। ठीक है, अब मैं जब वो वही आर्टिकल अपने ब्लॉग में डालूंगी, अपने वेबसाइट पेज में डालूंगी, वुड इट रीडायरेक्ट टू कैनोनिकल एरर? बिकॉज दोनों लिंक्डइन में भी वही आर्टिकल है और मेरे ब्लॉग में भी वही आर्टिकल है, सेम कीवर्ड्स हमने टैग किए हैं, तो वो तो फिर इट विल लीड टू दिस एरर। ये प्लेजरिज्म इशू यही होता है, कैनोनिकल टैग ही होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा किया है तो पहले आपको लिंक्डइन पे जाके वो कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा। ओरिजिनली आपका कंटेंट तो आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो और फिर लिंक्डइन पे प्रमोट करो, अगर आपने ऐसा किया है तो। अदरवाइज अगर वो कंटेंट पब्लिश और आपने यहाँ पे भी पब्लिश किया, क्योंकि लिंक्डइन पे पहले हुआ है, तो वो लिंक्डइन में उस लिंक मतलब गूगल को ये फर्क नहीं पड़ता किस प्रोफाइल ने डाला है, गूगल के सामने तो वो linkedin.com ने डाला है। तो पहला ओनर उस पर्टिकुलर कंटेंट का लिंक्डइन है, आप सेल्फ ओनर हो, तो आप आओगे कैनोनिकल टैग में कि आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया है, दो इट इज योर कंटेंट विद फ्रॉम योर प्रोफाइल, बट इट वुड cause a plagiarism. So in this case, you have to delete the first one if you want to publish it here, and then you have to promote it there, re-promote it there, like this. So first publishing it on our website and then putting it on LinkedIn won't create issue, क्योंकि अभी हमारे लिए ब्रांड अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन, क्योंकि हमारा न्यू वेबसाइट है तो उसको रैंक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फॉर मी इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट माय वर्क, तो इसीलिए मैंने लिंक्डइन में डाला था। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस केस? इसलिए जब मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था, हम बैकलिंक जब बना रहे थे, कि आपको एक you do not have to copy and paste your content, you have to rephrase and create a summary of it, whether you're doing it on Quora or Medium में तो खैर import हो जाती है link, but when it comes to your LinkedIn you have to make a summary of it, so it couldn't be the copy and pasted version of it. ओके, हाँ सब वो याद है। हाँ ओके मैम, मेरा थोड़ा रिलेटेड है मोनिका का क्वेश्चन से। जैसे अभी हम लोग यदि एडिट करें उसको तो उसमें तो डिफरेंस नहीं होगा ना, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, आप उसको सिनोनिम्स डाल दो, और फिर आप टूल जैसे क्यू टेक्स्ट में जाके आप पेस्ट करके देख लो कि भाई ऐसा तो नहीं कि अभी भी प्लेजरिज्म दिखा रहा है।
यस निधि? तो प्राची, मैंने भी यही एरर किया है कि मैंने लिंक्डइन में पहले डाल दिया और उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट के उसमें भी डाल दिया। तो वो नाउ शुड आई डिलीट ऑल दोस ब्लॉग्स जो पहले जा चुके हैं लिंक्डइन या मीडियम में? देखो, अभी जैसे मोनिका का एक कंसर्न था कि भाई मेरे लिए ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी वेबसाइट तो गूगल पे रैंक होगी भी नहीं, करेक्ट? अभी मेरे लिए लिंक्डइन पे विजिबल होना ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लॉग वहां से डिलीट कर दो, लिंक्डइन से यहाँ पे प्रमोट करो, बट एक समरी डाल के अपने ब्लॉग को रीडायरेक्ट कर दो ताकि आप लिंक्डइन पे भी रहो। ओके। हाँ, यस खुशी? सॉरी, यू आर इन म्यूट। मैम, जो अभी मोनिका और निधि ने कहा था, तो इसमें क्या होगा कि हम ब्लॉग डालेंगे तो नीचे हम लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का। हाँ जी। तो प्लेगैरिज्म का इश्यू नहीं आएगा फिर? नहीं, यूआरएल तो अपन प्रमोट कर सकते हैं ना, यूआरएल प्रमोट कर सकते हैं, बट सेम का सेम कंटेंट की समरी डालो और फिर अपना यूआरएल, अपने वो वाले पेज का यूआरएल प्रमोट करो, ऐसा। बिकॉज अभी क्या इश्यू आएगा ना, तो न्यू वेबसाइट है, तो न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, तो इंस्टाग्राम और इन सब में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में we'll keep on adding our URL and then we keep it, so you have to give the summary and then link. So there will be no issue of duplicate plagiarism of 404. नहीं, यूआरएल तो हम प्रमोट करेंगे, यूआरएल में कुछ नहीं आता। यूआरएल को तो वो एज ए कंटेंट लेता भी नहीं, वो तो एज ए लिंक लेगा ना उसको। ओके मैम। हाँ, ओके, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा एरर्स के बारे में क्लियरिटी है सभी को अभी, ठीक है? हमको सिर्फ वो अभी भी याद रखो, वी आर जस्ट लेबोरेटरी मैनेजर्स, कि हमको सिर्फ ये डिटेक्ट करना है क्या पेजेस में क्या एरर है। आपको पता होना चाहिए कि वो जैसे उनको पता होता होगा ना कि शुगर लेवल किससे कितना नॉर्मल होता है, तो उस रिपोर्ट में लिखा भी होता है नॉर्मल, हाइपर वाला, और वो कितना होता है, तो वो रेंज वो भी दे देते हैं वो लोग, ताकि रिपोर्ट डॉक्टर के लिए इजी हो। बाकी डॉक्टर को खुद पता है कि शुगर लेवल कितने से कितनी रेंज तक है तो वो नॉर्मल है, या उसको ये पता है कि ब्लड प्रेशर किससे कितने रेंज तक नॉर्मल है, या जो भी डायग्नोसिस हो रहा है। सो यही चीज है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई क्या एरर्स हैं, उनका क्या कॉज होता है और कैसे वैलिडेट करते हैं। बट वैलिडेशन वाला जो काम है वो डेवलपर्स ही कर पाएंगे, कि मतलब उसको फिक्स करने वाला काम है कि भाई ये 404 को रीडायरेक्ट करना है, या कुछ ऐसे पेजेस है जो हमको रैंक कराना है बट फॉरबिडन में चले गए, उनको वापस इंडेक्स करवाओ। ये सारी चीज हम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कल अपन देखते हैं, अभी आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं साइट मैप जब बताऊंगी तो साइट मैप के थ्रू हम ये चीज खुद भी कर सकते हैं, मतलब एज अ नॉन कोडर भी ये चीज हमारे साइड से हो सकती है, हम कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है? तो एरर वाला ये था। अब साइट मैप पढ़े अपन, ओके विद दैट? कल कर सकते हैं, भूख लग गई। अच्छा, आई वाज थिंकिंग इफ आप SCM रश पे कैसे करना है वेबसाइट ऑडिट, अगर बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। मैं SCM रश पे चाहती हूँ, ठीक है? तो अपन साइट मैप कल कर लेंगे। बस मेरे पास SCM रश हो आज, उसका एक्सेस 1 सेकेंड। Tools by प्लस आप वो भी बता दीजिए, जैसे टूल्स में पे कोई ग्रुप कंप्लीट हो जाता है ना, तो नेक्स्ट पे कैसे मूव करना है। हाँ, बता दीजिए। Second. बोलो।
मैम अभी जो हम कर रहे हैं वो एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज, लाइक व्हाट इज इट टेक्निकली मींस, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन मिस भी हो गया, तो दैट इज द तो रीजन ये तो जो साइट ऑडिट है ये तो कोई टाइप का एसईओ नहीं है, ये तो सिर्फ मतलब वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करना हुआ। बट जो अपन अभी एरर्स के बारे में देख रहे थे ये टेक्निकल एसईओ में आ जाएगा, और जो हम कल पढ़ेंगे साइट मैप और robots.txt वो भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। इंडेक्सिंग क्रॉलिंग वो सब कितना आता है? ये तो ये कोई टाइप ऑफ एसईओ नहीं है, वो तो अभी वेबसाइट का परफॉर्मेंस ट्रैक करना हुआ, तो वो तो सिर्फ वेबसाइट परफॉर्मेंस चेकिंग है। तो वेबसाइट अभी जो 2 दिन से हुआ है वो आपने क्या करवाया, थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो? पेज एसईओ किया था हमने, बैकलिंक्स के बारे में पढ़े थे, ये किया था हमने। ओके मैम, ठीक है। हाँ, मैं विभूति आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या SCM रश के लिए टूल्स बाय का? हाँ मैं कर देती हूँ। हाँ ना दुलाल, आपका कोई क्वेश्चन है तब तक आप पूछ लो। हेलो। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलिए। पहले तो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आउटसोर्स करता हूँ काम नहीं करके। सॉरी। एंड सेकंड थिंग, कैनोनिकल टैग के बारे में मैंने जो पढ़ा है सुना है उसमें ऐसा है कि कैनोनिकल टैग ऐसा होता है कि जैसे सर्विस पेज है वेबसाइट में कोई भी एक, ठीक है, तो हाँ। वो लिंक है ना, हम वेबसाइट के इंटरनली हम क्लिक करते हैं अलग अलग पेज पे, तो वो लिंक 2-3 जगह पे ओपन हो रही है, सेम पेज 2-3 जगह हमने रेफर कर रखा है, तो क्रॉलर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा किसको वो करूँ, तो सबको वो क्रॉलिंग करने लग जाता है। तो कैनोनिकल टैग वो रेफर करता है ओरिजिनल वन ये है, तो उस यूआरएल को सिर्फ कैनोनिकल टैग दी जाता है, तो वो ओरिजिनल वन है, उसको ही इसको क्रॉल करना है, ऐसा है। ओके फाइन। तो मान के चलो एज एन एग्जांपल, अगर मेरा होम पेज है उसके अंदर एक यूआरएल डली है और वही यूआरएल मल्टीपल दूसरे टैब में भी हाइपरलिंक कर रखी है, दूसरे बटन में भी, तो वो लिंक सारे यूआरएल को अलग हाँ क्रॉल करेगा। हाँ, तो वो ओरिजिनल वन को रेफर करने के लिए कैनोनिकल टैग दिया जाता है, क्रॉलर कंफ्यूज नहीं हो जाए उसके लिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ओके। उसमें वो आई थिंक लिंक्डइन या सोशल मीडिया का कंटेंट इसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ। नहीं तो इसको फिक्स कैसे करते हैं फिर? कैनोनिकल टैग देते हैं। टैग दे देते हैं, कैनोनिकल टैग एक कोड का वो होता है, तो वो ये वाला ओरिजिनल वन है, यही इसको उसको कंसीडर करे ओरिजिनल वन, ऐसा। ओके फाइन, ठीक है, ताकि वेबसाइट का क्रॉलर ज्यादा क्रॉलर 3 जगह कंफ्यूज नहीं हो जाए, 4 जगह पे जाके वो ओरिजिनल नहीं उसी को कंसीडर करे, उसको ही क्रॉल करे। मैम थोड़ा दोबारा समझा देंगी, मुझे आधा समझ में आया। ठीक है। तो what he means to say कि canonical tag is basically when let's say you have linked a specific URL in 2 different pages. ठीक है, सपोज मुझे बताना ना तुलाल अगर मैं सही समझी हो तो, ठीक है। एक ऐसा URL है कॉन्टेक्ट अस पेज का, जो कि आपने 2 अलग अलग पेज में उसको लिंक किया है, तो उसको ऐसे ही है ना दुलाल कि वो दोनों को ही जैसे आपकी वेबसाइट में सोशल मीडिया सर्विसेज का पेज है, ठीक है, अब वो पेज सोशल मीडिया वाले पे क्लिक करोगे तो भी वो खुलेगा, वही सेम लिंक आप किसी और जगह भी टैब दे रखा होगा तो वहां पे भी वो ओपन होगी, ऐसे 2-3 जगह पे आपने वो सेम लिंक दे रखी होगी, तो वो क्रॉलर वेबसाइट के अंदर आएगा तो 3 लिंक दिखेगा, 3 अलग अलग जगह पे लिंक दिखेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कैनोनिकल टैग ओरिजिनल वन रेफर करने के लिए दिया जाता है, तो वो कोडर होता है वो ओरिजिनल वन को रेफर कर देता है कि इसको ही कंसीडर करो ओरिजिनल वन, बाकी सब डुप्लीकेट है, तो वो बाकी को नहीं करेगा। ठीक है। तो इससे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रीजन ये है ताकि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस दिखेंगे, जो कि आपका है तो पेज एक कॉन्टेक्ट अस ही वाला, बट वो 3 जगह यूआरएल दिख रही है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में आपको पता है कि बार बार वो बॉट्स या क्रॉलर को भेजता है। जब नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं, जैसे हमने बात किया था मिंत्रा बहुत ज्यादा पेजेस है, तो क्रॉलर उनकी वेबसाइट में बार बार विजिट करते थे, उसकी वजह से सर्वर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
इसलिए शायद हम ये करते होंगे कैनोनिकल टैग देने का मतलब ये होता होगा इन माय अंडरस्टैंडिंग कि ताकि हम अपने वेबसाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस जो हैं उनको सबमिट कर दें और डुप्लीकेसी वाले पेजेस को भी वो वही उसी में कंसिडर कर लेगा, उसको क्रॉल नहीं करेगा अलग से, ऐसे ही कुछ होगा। यस यस। ठीक है, तो ये रीजन है कि कैनोनिकल टैग देते, बट आपको सिर्फ लिस्ट निकाल के देना है, वो लोग कर लेंगे। बाकी ये भी चीज होती है कि मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें अगर कॉमन होती है उस वजह से भी कभी कभी यू नो लाइक गलत इंटरप्रेट कर लेता है क्योंकि ये सेम ही पेज होगा, डुप्लीकेसी कंटेंट उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है कि 2 पेजेस पे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन या स्लग सेम ना। ठीक है, अब कहाँ पे थे हम? हाँ, मुझे शेयर कर रहे थे आप, विभूति स्क्रीन शेयर कर दो। One second. हाँ हाँ, ठीक है, is it visible? हाँ इट इज विजिबल। अब ये जैसे 2 अकाउंट है ना, इसमें से कभी कभी होता है, कभी फर्स्ट पे कहता है वो बताएगा कि यू कैन नॉट एड एनी अनदर। जैसे अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कि भाई हमको इस पर्टिकुलर साइट को स्टडी करना है, तो वो फिर अगर फुल हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे इसमें जैसे एक्सेस सेकेंड वाला दिख रहा है ना, तो उस पे क्लिक कर लेना, फिर ऐसा किसी पे भी अभी क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे नीचे देखो कहीं पे साइट ऑडिट आ रहा होगा, ये देखो साइट ऑडिट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करने का, अपनी वेबसाइट का कोई भी जो वेबसाइट है उसका, यहाँ पे मेरी वेबसाइट डाल दो अगर लग रहा है अभी तो। नहीं, I think इसका डाल देती हूँ because ये खुला ही हुआ है। कोई भी डाल दो, कोई भी डाल दो। हाँ, क्रिएट प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, डोमेन वापस डालो, प्रोजेक्ट नेम कुछ भी डाल सकते हो अभी। वो लेगा 5 मिनट। स्टार्ट साइट ऑडिट, या वो 4-5 मिनट्स में जितने इनके फर्स्ट 100 पेजेस हैं उनमें से पूरा डिटेक्ट करके आपको पूरा उनका वो दे देता है। बाकी ऐसी एक और टूल है, तब तक मैं बात कर लेती हूँ उसके बारे में। एक मोबाइल स्पीड टेस्ट करके, यूजर फ्रेंडलीनेस टेस्ट करके एक टूल है। कहाँ गई वो वेबसाइट? पोर्ट्रेट ऑफ लव, उसको क्लिक करो। हाँ देखो अभी हो रहा है वो, ठीक है, उसको होने दो। मोबाइल यूजर फ्रेंडलीनेस टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट मोबाइल यूजर फ्रेंडली है या नहीं, तो उसके लिए खैर तो बहुत सारे टूल हैं, ये भी बता देगा आपको SEM रश, बट एक गूगल का ही टूल है जो टूल का मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट, एक सेकेंड भेज रही हूँ ग्रुप पे। क्या तो नाम है उसका?
Not so big. How are you making nice good hair? एक सेकंड, I have to find that. क्या नेम है यार उसका? नथुला, डू यू रिमेम्बर? टेस्ट यूजर फ्रेंडलीनेस, गूगल का एक टूल है। मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक शीट बनाते हैं क्लाइंट के लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वाली है, बट आपको एटलीस्ट जैसे उस रिपोर्ट में 404 एरर, 403 एरर, डुप्लीकेट पेजेस नहीं था क्या? ये स्क्रीन शेयर था ना? हाँ हाँ, तो ये 403 एरर, 404 एरर, बाकी कौन से पेजेस है जिसमें डुप्लीकेट कंटेंट है, हेडर्स नहीं है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको, ये डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा SCM रश में। प्लस SCM रश में आप पूरी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, सो यू डू नॉट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, इतना ज्यादा नहीं, एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरा डेटा कॉपी हो जाता है। तो ये ऐसी रिपोर्ट हम इंक्लूड करके क्लाइंट को भेजते हैं कि भाई ये चीजें फिक्स करने की है, वैलिडेट करने की है, जब आप काम कर रहे हो या जब किसी को पिच करते हो तब भी। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट हम फिर कैसे बना सकते हैं? उसमें इंडिविजुअली टाइम लगता है या इतना डिटेल्ड रिपोर्ट भी हमें टूल्स में मिल जाते हैं? ये SCM रश जो है ना, ये पूरी महाभारत दे देगा आपको, सब कुछ की वेब विटल्स प्लस उसका वेबसाइट स्पीड, सारी चीजें दे देता है। जो चीज आपको समझ में आती है वो आप ऐड कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में रहता है वो। जैसे हम कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, वेबसाइट स्पीड का, जो एरर्स मैंने आपको भेजा वो एरर्स का, प्लस उनमें क्या एरर, लाइक हम पूरा वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, ये जब क्लाइंट की कर रहे हो तब बनाते हो, बट एटलीस्ट 4-5 के सैंपल दे देंगे कि ये देखो यहाँ पे हेडर्स नहीं है, या डुप्लीकेट ये 2 पेज हैं जहाँ पे डुप्लीकेट ऐसे और भी पेजेस हैं, तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको SCM रश में मिल जाती है। Okay. हाँ, और वही है कि पूरी इंफॉर्मेशन आप पुल आउट करो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, यू डू नॉट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, एक्सपोर्ट करके पूरा टेम्पलेट में दे देता है वो आपको। यस विभूति। So is it just for example, if you are pitching a client, तो इतना टेक्निकल रिपोर्ट पहले ही भेज दे, या इट्स बेटर कि हम इसमें भी वो थोड़ा ओपन कॉन्सेप्ट रखें कि उनको बस एक आइडिया दे दें, unless it is confirmed कि हाँ when वो प्रॉपर्ली आ जाता है हमारे पास विद वर्क, मे बी हम वो पूरा रिपोर्ट शेयर करें? नहीं, पूरा रिपोर्ट हम शेयर नहीं करते तभी जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इतना, एक तो टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक नहीं 10 क्लाइंट को पिच करना होगा, तो आप एक में इतना ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, कैसे छोटी सी टेम्पलेट बनाते हो जिसमें उनके पहले तो ऐसे क्या कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स का क्योंकि आपको वो उबर सजेस्ट में मिल जाता है ना, टॉप रैंकिंग पेजेस, टॉप कीवर्ड्स दे आर गेटिंग ट्रैफिक ऑन, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे कीवर्ड जिनमें उनको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो कंपटीशन ज्यादा है या सर्च वॉल्यूम कम है, वो लिखने का, इंस्टीड ऑफ दिस क्या कीवर्ड होना चाहिए, ऐसे 4-5 का लिस्ट। फिर उसके बाद एरर वाले पेजेस हो गए, उनका वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है, ऐसे करके मैं आपको एक रिपोर्ट भेजूंगी जो मुझे किसी ने पिच किया था मेरी वेबसाइट के लिए, तो वो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि भाई ये प्राची ये चीजें जो फिक्स करने की, बाकी अपन और बात कर सकते हैं, ऐसा।
ठीक है, तो वो मैं आपको भेजूंगी। यस यस नाथुलाल, कुछ बोल रहे थे? हाँ 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 हाँ, हाँ वो स्क्रीनिंग फॉग है, वही टूल है। उसमें ऑडिट रिपोर्ट जनरली बनाते हैं हम लोग और क्लाइंट के लिए, कि उसमें सब कुछ आ जाएगा। स्क्रीनिंग फॉग करके जो टूल है, टूल मतलब सॉफ्टवेयर है, हाँ हाँ, फ्री है? क्रैक वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ हाँ हो हाँ, जाएगा उसमें तो। उसी में सब कुछ होता है, मतलब उसी से जनरली सारे रिपोर्ट बनाते हैं। एसईओ एक्सपर्ट होते हैं वो सब, उसी से हाँ स्क्रीनिंग फॉग से रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें सारी चीजें डिटेलिंग में मिल जाती है आपकी। कंटेंट कितना डुप्लीकेट है, कौन सी ब्रोकन लिंक है, किस पे कीवर्ड मिसिंग है, किस में पेज टाइटल मिसिंग है, सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट जनरली उसी 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 में जाके वो एक्सेल को एक्सपोर्ट करके उसमें से ही बनाते हैं जनरली हम लोग। तो वो बेस्ट टूल्स है ओके। स्क्रीनिंग। सारे एसईओ वाले जनरली वो यूज करते हैं, पर वो इसमें थोड़ा टूल्स बाय में दिया है कि विभूति है स्क्रीन फ्रॉग वाला जो भी है, क्या, ये टूल्स बाय में शी हैज नहीं ऑप्टेड। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना अच्छा, पड़ता है, वो सारा बता देगा ऑनलाइन। ओके फाइन, वो ठीक है। वो टूल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट का यूआरएल डालोगे तो सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो जनरली सारे एसईओ वाले उसी में ही करते हैं, ओके फाइन, ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं तो उसी में ही करते हैं। ओके फाइन, आई विल ट्राई टू फाइंड द क्रैक वर्जन ऑफ इट। अगर आपको मिले ना फिलहाल तो आप प्लीज मेरे पास तो डाउनलोड किया हुआ है। हाँ तो हमें भेज दो। ओके उसको ओके, तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा आपको हाँ ऑनलाइन। हाँ हाँ, तो उसका मैं लिंक, उसको, हाँ 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 वो मैं दे दूंगा, वो मैं आपको दे दूंगा। हाँ हाँ, लिंक भेज दो तो हम डाउनलोड करके देखेंगे। ठीक है, यस मंजू। Mom, I wanted to ask something about Google Ads. So, if only those websites which have a high organic ranking position could only get the good ad rank also. Only those websites having Good, high ranking in the search engine results page. Only those websites could get a good ad rank also when we are all right, so very good question. running Google Ads. Google Ads, तो पहली बात तो पेड है, तो वहां पे उसको रैंक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक कीवर्ड पे 3-4 कंपनीज ऐड रन कर रही हैं, तो भाई सब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला लिंक होता है, फर्स्ट एससीआरपी का जो फर्स्ट यूआरएल रहता है, उस पे 68% ज्यादा क्लिक्स आते हैं। अब भाई मान के चलो मंजू, आप चला रहे हो ऐड एक कीवर्ड पे और आपके कॉम्पिटिटर्स भी उसी पे ऐड चला रहे हैं, आपका तो विजन ये होगा ना कि भाई मुझे पहले रैंक करो आप। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था शायद ये कीवर्ड पे, जैसे एक होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं, वैसी होती है पेड डिफिकल्टी। जब आप कोई कीवर्ड को देखते हो तो उसमें ये भी बताता है कि भाई इसका एसईओ डिफिकल्टी, एसईओ पे रैंक करना कितना डिफिकल्ट है, और पेड अगर कीवर्ड सर्च करो, मान के चलो मंजू आपका जो कीवर्ड है वो है बेस्ट एआई राइटिंग टूल, ठीक है। अब आपका ये कीवर्ड की पेड डिफिकल्टी है लेस देन 35, इसका मतलब है कि कम लोग इस कंपटीशन का, मतलब लोग इस कीवर्ड पे जो एड रन कर रहे हैं वो भी कम है, तो आपका चांसेस फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करने के ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपकी डोमेन अथॉरिटी से आपका पेड रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एनीवे पे कर रहे हो। जैसे मान के चलो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मेरे पास 10 फॉलोवर है, बट अगर मैं ऐड चला रही हूँ तो इंस्टाग्राम का काम है कि ऐड दिखाए लोगों को, ठीक है, irrespective of my number of followers. Same thing, same goes with website. So that means it is good for a new website to run Google Ad. Whether it is a new or an old website, advertisement run karna is obviously a very good decision. When you are having any offer or discounts, launching something new, then you should run ad. Companies do that, क्योंकि ऑर्गेनिक अप्रोच पे कोई बहुत पेशेंस लगता है ना, बट किसी को फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहिए तो वो गूगल एड मैनेजर को हायर करता ही करता है। यस विभूति। This is regarding Medium. कल I created an account, तो Medium पे मेरे को वो ऑप्शन नहीं दिख रहा था wherein
जब आप दिखा रहे थे तो देयर वाज दिस ऑप्शन ऑफ इंपोर्टिंग अ ब्लॉग, तो वो पेड वर्जन में आता है? नहीं, फ्री वर्जन पे आता है। नीचे आपको राइट हैंड साइड पे स्टोरीज दिखेगा, ठीक है, तो उस पर क्लिक करना, राइट स्टोरी पे क्लिक करना, फिर उसके अंदर ऑप्शन आता है इंपोर्ट या राइट का। मैं दिखाऊं, एक सेकेंड। आई आल्सो साइड बाय साइड चेक। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड, मुझे मेरा पासवर्ड याद करना पड़ेगा पहले। मैं शेयर करती हूँ। जैसे ये रहा, ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करो और स्टोरीज पे जाओ, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा राइट अ स्टोरी और इंपोर्ट अ स्टोरी का, ठीक है। हाँ, गॉट इट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। बाकी जब इसमें आप आगे जाओगे ना पब्लिश करने के लिए, तब भी आपको बताता है कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एडिट करने का भी ऑप्शन देता है इसमें, तो ये अच्छी चीज है कि आप उसको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। एनीवे, हमने ये चीज पहले देखा था कि जो कीवर्ड है उसको हम टाइटल में स्टफ कर रहे हो, फर्स्ट 2 लाइन या 160 कैरेक्टर्स में करें, ताकि अगर आप मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे यू डोंट हैव द एक्सेस ऑफ स्निपेट एडिटिंग, then also it will pull out with the SEO friendly meta description or title, ठीक है। चलो फिर कल कनेक्ट करते हैं अपन स्निपेट के लिए, और robots.txt फाइल कल पढ़ेंगे। फिर हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मंडे को जाएगा अपना सेशन, ये SEO का, ठीक है, मंडे को कंप्लीट होगा, फिर अपन धीरे धीरे फ्रीलांसिंग पे जाएंगे, ठीक है। ओके देन, चलो सी यू गाइस टुमारो। मोनिका, मैं आपकी वेबसाइट में बैठती हूँ थोड़ी देर से, आप पोस्ट लंच और फिर I'll give you the review. टेक योर टाइम। ओके, ऑलराइट। हाँ खुशी, बोलो। हाँ मैम, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है, इट अबाउट सोशल मीडिया मैनेजर। और सोशल मीडिया में आई हैव एक्चुअली देयर इज वन क्लाइंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम हु इज इनटू पिलाटेस, तो उसका कर रही हूँ, एंड मुझे कंटेंट पिलर्स एंड ऑल वो वर्किंग किया है, तो बेसिकली मुझे 1 महीने का मिला है, तो 3 महीने में देन हाउ डू आई क्रिएट न्यू कंटेंट? वो सेम टू सेम ही चलता रहेगा? नहीं, कंटेंट तो आपका डिफरेंट होगा। 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर जो हमने शेयर किया था मैंने आपसे, वो भी आप वो 30 डेज का, तो दैट इज 15 डेज या 3 डेज इन अ वीक पोस्ट करना है, ओके। ये मेरा है। नाउ दिस लाइक 3 महीने का मैंने कंटेंट रेडी कर देती हूँ, ओके। नाउ द क्वेश्चन कम्स, आफ्टर 3 months will she hire me again? इट डिपेंड्स आप क्या कर रहे हो वहां पे। नहीं, तो वो तो मैं करूंगी, बट हाउ डू आई मतलब इसको बोलूं दैट you could keep it, because ultimately after 3 months it like get tiring for myself as a digital marketer, social media manager। मेरे अंदर मुझको लग रहा है 3 महीने में बस खत्म करो, but I don't want to do that। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अपना कंटेंट आगे का क्या होगा, ये Yes, मतलब अभी I am working on Pinterest, I'm just doing it, but I'm not able to find any good more content. Quality content, okay, fine. So what you do is share me the sheet that on which you have created this content idea. Take a look at it, like what you have done so far, and we'll give you the advice based on it. Okay, I think I've shared you the Insta page with you, remember? Okay, I'll ping you personally. हाँ, okay. Okay, fine. ठीक है guys, चलो, see you tomorrow. Have a very good day.